Good morning, guys. So today's video will be on a short recap to cement from building materials and construction. Today is 26th of March and I am making video on this channel after a very long time. So BMC में 3 टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है. It starts with cement. The second one is concrete. And third topic being brick plus timber. सीमेंट उनमें से जान है BMC की, because nearly 25% of the questions, rather it would be safe to say कि 60% of the question come from cement and concrete alone. From these two topics we get 60% of the questions on BMC. Hence बोलने की ज़रूरत नहीं है कि how much these two topics alone are important. So let's get straight to our short recap. So first thing we see is history of cement. History of cement में we go to who discovered it. So it was Joseph Aspidin who discovered in 1824 to 25. What he did is he found calcareous and argillaceous compounds in this thing called cement. So according to Joseph Aspidin, cement has calcareous, is a mix of calcareous and argillaceous compounds. Calcareous compounds are someone which have got calcium and magnesium primarily, and argillaceous include silica and alumina primarily. Hence calcium and magnesium and silica and alumina. I'll go slow first, then I'll go fast eventually. So calcareous compounds like limestone and argillaceous compound like clay. You know, chalk is something that has got limestone, marl and marine shell. These are the things which are primarily filled with limestone. Slate एक रॉक है, शेल भी एक रॉक है, एंड ऐश, ये वो चीज़ें हैं जो प्राइमरली क्लेई जिनमें होता है मटेरियल. सो यू टॉक अबाउट सीमेंट, तो सीमेंट एक कोहेसिव ही नहीं बट एडहेसिव मटेरियल भी है. सो इट इज़ अ कोहेसिव एज वेल एज एडहेसिव मटेरियल. सो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है. Now comes constituents of cement. इसमें बहुत सारे न्यूमोनिक्स आप यूज़ कर सकते हो, और अलग अलग शॉर्ट बुक्स, चाहे वो मेडीजी की हैंड बुक हो या सिविल की गोली हो, दे ऑल यूज़ देयर ओन न्यूमोनिक. आई यूज़ माई ओन न्यूमोनिक, और न्यूमोनिक का कोई लॉजिक नहीं होता है. सो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू रिमेंबर इट वो मैटर करता है. फिर इसमें आप इमेजिनरी कैरेक्टर्स यूज़ करो, जस्ट इट शुड बी एज सिंपल एज, और जो आपके लिए यूज़फुल हो. मैं यहाँ पे जो शेयर करूँगा वो सिविल की गोली पे मिल जाएगा आपको. उन्होंने शेयर किया हुआ है लॉस में है एम्स, जहाँ पे L इज़ लाइम, S इज़ सिलिका, A इज़ alumina, I is iron oxide, M is
मैग्नीशिया एंड S इज सल्फर ट्राइऑक्साइड. यहाँ पे में है इज नॉट necessary. So this is what is the constituents of cement. So L is lime, S is silica, A is alumina, Ca is calcium, I is iron oxide, M is magnesia, S is sulfur trioxide and A is alkalis. So आप कोई भी निमोनिक यूज़ कर सकते हैं. और ये ऑर्डर भी इसी वे में है कि लाइम इज़ मोर देन सिलिका, दैट इज़ लाइम इज़ मोर देन सिलिका फॉलोड बाय अलुमिना फॉलोड बाय जिप्स. जैसे जिप्सम एक रिटार्डर है, देन कम्स आयरन ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड देन सल्फर ट्राइऑक्साइड, देन अल्कली. यही ऑर्डर भी है इनका. सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे जाएँ तो फर्स्ट वन इज़ लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका परसेंटेज है 63% एवरेज. सेकेंड वन इज सिलिका, SiO2 जिसका परसेंटेज है 20%. देन थर्ड वन इज अलूमिना, दैट इज Al2O3 जिसका एवरेज है 6%. देन फोर्थ वन इज जिप्सम जो कि रिटार्डर का काम करता है, एल्यूमिना को फ्लैश सेट करने से बचाता है. Then comes iron oxide Fe2O3 जो कि 3% है एवरेज. ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखने पड़ते हैं जेई के एग्ज़ाम्स में. मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO 2% एवरेज. और फिर आ जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 that is 1.5% average. And then comes alkali, that is sodium oxide plus potassium oxide, gives 0.5 to 1% average. It should not be greater than 1%. ये alkali का वो है, otherwise it can cause problems. So lime is 63%, silica is 20%, alumina is 6%. This is 83, nearly 89% if I am wrong, if I am right. So lime, silica, alumina ही nearly about 90% cover कर जाता है. Rest of them are also important. ऐसा नहीं है उनकी परसेंटेज कम है तो इस पे नहीं जाना चाहिए. These are also very equally important. इनके ये चीज़ें नहीं हो तो शायद सीमेंट वैसा नहीं होगा जैसा हम सोचते हैं, खाली उनसे ही बात नहीं बनेगी. सो लेट्स कम टू द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज़ लाइम, जो चीफ है, चीफ कह सकते हैं इसे बिकॉज ये सबसे ज़्यादा मात्रा में है. लाइम दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड एंड इसका रेंज 60 से 65% है, वेयरएज ऑन एवरेज इट इज़ 63% टेकन. सो क्या काम है इसका? इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ. और एक्सेस में अगर लाइम रहता है तो ये अनसाउंडनेस देता है और डिक्रीज़ भी करता है. अनसाउंडनेस देता है एंड डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ. तो एक्सेस में इसका डिसएडवांटेज है. वहीं अगर डेफिशिएंसी होगी इसकी, ये कम मात्रा में रहेगा तो वो तब भी ये रिड्यूस करता है स्ट्रेंथ को ही. यानी समहाउ प्राइमरीली लाइम इज़ रिलेटेड विद द स्ट्रेंथ. तो ये देता भी स्ट्रेंथ है और लेता भी स्ट्रेंथ है. अगर पर्याप्त मात्रा में होगा तो स्ट्रेंथ देगा, पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ घटेगी, और पर्याप्त मात्रा से कम होगा तो तब भी स्ट्रेंथ घटेगी. दैट इज़ रिड्यूसेस both in case it is in excess or in case it is in deficiency. So the first thing is over. Let's go to the second constituent जो मात्रा में सेकेंड नंबर पे आता है लाइन के बाद, दैट इज सिलिका विच इज़ SiO2. इसकी मात्रा का रेंज है 17 to 25% and on average we take it as 20%. So एक ट्रिक जो आप लमसम यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि जो एवरेज, आप एक ही चीज़ याद रखिए, या तो आप रेंज याद रखिए, इधर यू रिमेंबर रेंज और यू रिमेंबर द एवरेज थिंग, बिकॉज एवरेज याद रखोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है, क्योंकि -63 इज़ 60, ओके, एंड -320 इज़ 17.
बोथ ऑफ देम, और एवरेज में +3 कर दो, रफली इक्वल्स टू 65 66 आता है। एवरेज में +3 कर दो, रफली 25 के करीब आता है। तो एवरेज याद रखना वुड बी मच बेटर। +-3 करके यू कैन कम नियर अबाउट द रेंज ऑप्शंस। तो सिलिका का क्या रोल है, लेट्स सी। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्ट्रेंथ, सो इट ऑल्सो इम्पार्ट्स द स्ट्रेंथ। अब अगर ये एक्सिस में है तो ये क्या करता है, अनसाउंडनेस तो नहीं देता लाइन की तरह, बट ये इंक्रीज कर देता है सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देगा, और या फिर स्लो कर देगा, स्लो कर देगा सेटिंग को, इंक्रीज कर देगा सेटिंग को। का मतलब यही है कि सेटिंग डिले हो रही है या स्लो हो रही है। स्लो डाउन सेटिंग, एग्जैक्टली किस टाइम को ये स्लो कर देता है, वो है FST को बढ़ा देता है, यानी कि फाइनल सेटिंग टाइम को, नॉट इनिशियल सेटिंग टाइम। जैसा कि हम जानते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम OPC का सिर्फ 30 मिनट्स है, और फाइनल सेटिंग टाइम इज 10 आवर्स, राइट, यानी कि 600 मिनट्स। सो इस चीज़ को सिलिका अगर एक्सेस में हो तो बढ़ा देगा। और वहीं ये तो हो गया एक्सेस का बात। अगर डेफिशिएंसी होगी सिलिका की, सो इट विल रिड्यूस द स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेस में होने के कारण ये सेटिंग को स्लो कर देता है, पर अगर पर्याप्त मात्रा से कम हो तो रिड्यूस करेगा स्ट्रेंथ, इसलिए भी क्योंकि इसका प्राइमरी कंसर्न स्ट्रेंथ देना है। अगर उतना नहीं होगा तो जो चीज़ ये दे रहा था यानी कि स्ट्रेंथ, वो भी नहीं दे पाएगा। देन कम्स थर्ड वन, दैट इज अलूमिना, Al2O3, जिसकी रेंज 3 से 8% है, या ऑन एवरेज 6% एवरेज है इसकी। अगेन 6 - 3 इज 3, 6 + 3 इज 9, विच इज़ नियर अबाउट 8। तो एवरेज का +-3 करके यू कैन डू इट। वट एल्यूमिना डज इज इट इम्पार्ट्स फ्लैश। इम्पॉर्टेंट है एल्यूमिना, अगर एल्यूमिना ना हो तो शायद सालों साल लग जाएं सीमेंट को सेट करने में ही। सो इम्पार्ट्स फ्लैश सेट, क्विक सेट, इनिशियल सेट, एंड releases high heat of hydration। तो दो बड़े प्राइमरी काम है इसके, फ्लैश सेट करना, क्विक सेट करना, बहुत जल्दी जल्दी सेटिंग करा देता है सीमेंट की, और हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालता है, काफ़ी हीट रिलीज होती है एल्यूमिना की रिएक्शन से। ऑल्सो इट वर्क्स एज फ्लक्स, एल्यूमिना वर्क्स एज फ्लक्स, यानी इट रिड्यूसेस हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इन किल्न। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जब कैलकेरियस और आर्जिलिशियस कंपाउंड्स किल्न में डाले जाते हैं तो उनको हीट किया जाता है नियर अबाउट 1400 डिग्री सेल्सियस पे। उस टाइम पे अलुमिना कम ही टेम्परेचर पे कैलकेरियस और आर्जिलियस कंपाउंड की फ्यूजन कराता है। सो एंड इट वर्क्स एज फ्लेक्स, इज ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। सो एल्यूमिना वाला हो गया। नाउ लेट्स गो टू जिप्सम, that is calcium sulfate with 7 water of crystallization, 7 molecules of water of crystallization. So what it does is it increases initial setting time and not final setting time, जैसे कि सिलिका के एक्सेस में होता था। सिलिका में जब सिलिका एक्सेस में होता था, सिलिका एक्सेस में होता था, so what it used to do is it increase the final setting time FST। लेकिन जिप्सम इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ा देता है। होता क्या है कि एल्यूमिना फ्लैश सेट करा देता है, वो 30 मिनट से भी कम टाइम में, 5 मिनट में करवा देगा सीमेंट को सेट। बट जिप्सम ही एक ऐसा रिटार्डर है विच इन क्वांटिटी ऑफ 3 to 4% जो है IST को बढ़ा देता है, फ्लैश सेट में थोड़ा रिडक्शन करता है। ठीक है, दैट इज इट इंक्रीजेज IST और रिटार्ड्स इनिशियल सेट process। It also imparts false setting। अब false setting क्या है उसमें नहीं घुसेंगे फिलहाल, बिकॉज दिस इज सपोज टू बी अ शॉर्ट वीडियो।
सो बट इट डज, जिप्सम ऑल्सो डज फॉल सेटिंग। उसका कारण है ये भी वॉल्यूम चेंज करता है, यू नो रिलीज करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और फिर एब्जॉर्ब कर देता है। तो उस सब से एक होता है वॉल्यूम चेंज आता है, एक्सपल्शन होता है वॉल्यूम का, तो उससे लगता है, या रिडक्शन होता है वॉल्यूम का, तो इससे लगता है कि सेट हो गया। देन कम्स आयरन ऑक्साइड, दैट इज़ Fe2O3, जिसकी रेंज है 0.5 to 6% एंड 3% एवरेज। सो व्हाट इट डज इज इम्पार्ट्स हार्डनेस, ये इम्पॉर्टेंट है, गिव्स हार्डनेस। पहले सीमेंट सेट होता है, उसके बाद उसमें हार्डनेस आती है, और रेडिश ब्राउन कलर भी इसी से आता है, आयरन ऑक्साइड से रेडिश ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है, और स्ट्रेंथ भी देता है बट इनडायरेक्टली। ये इम्पॉर्टेंट है कि इनडायरेक्टली देता है, यही नहीं, दोनों, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों। सो strength is given indirectly by not only iron oxide but also magnesium oxide. They both are responsible for giving indirectly their strength, because how indirectly they help lime and silicas to fuse। और हमने ऊपर देखा कि lime और silica primarily responsible हैं स्ट्रेंथ के लिए, तो अगर उनको फ्यूज़ करने में हेल्प कर रहे हैं तो डैट मीन्स दे आर इनडायरेक्टली गिविंग द स्ट्रेंथ। देन कम्स द सिक्स्थ वन, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका रेंज है 0.5 से 4%, 2% ऑन एवरेज। इट ऑल्सो इम्पार्ट्स हार्डनेस, टिंज ऑफ येलो कलर देता है, वेरेज आयरन ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर दे रहा था, और स्ट्रेंथ भी देता है। स्ट्रेंथ को स्टार मार्क किया है हमने यहाँ पे, बिकॉज इनडायरेक्टली देता है, उसकी कहानी जस्ट अभी हमने देखी। अच्छा, इफ़ इट इज़ इन एक्सेस, अगर ये एक्सेस में है तो अनसाउंडनेस देगा, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जाके हम अनसाउंडनेस के टेस्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ ली चैटलर्स एपरेटस और ऑटोक्लेव मेथड, उसमें इस चीज़ का रोल है। फिर आ जाता है सल्फर, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, 1.5% एवरेज है एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.5%. This also imparts unsoundness. How? Calcium and aluminium in presence of sulfur, they give calcium aluminosulfate. एक ऐसा कंपाउंड, कैल्शियम एल्यूमिनोसल्फेट, एक ऐसा कंपाउंड जो अपने बनते हुए वॉल्यूम एक्सपांशन शो करता है 227%. And also magnesium oxide in presence of sulfur also gives magnesium sulfate, जो कि वॉल्यूम बढ़ाता है, hence unsoundness देता है. तो sulfur is somewhat a problem for us in cement. Then come alkali, sodium oxide plus potassium oxide. They should not be greater than 1% as they impart fluorescence, white patches, fluorescence. And they also, if in excess, they give flash set. One thing that is important here is alkali unsoundness तो देता है, but not in cement, but in concrete. So unsoundness in concrete, but not in cement. So if I have to see or I have to recall कि unsoundness cement में किन compounds की वजह से आती है, so this is an important one. Lime. If lime, which is the primary constituent, 63% average, if this is in excess तो unsoundness आएगी, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा. If magnesium oxide is in excess तो unsoundness आएगी. Then comes if sulfur trioxide is in excess तो unsound आएगी सीमेंट में. जितने भी हमने एक न्यूमोनिक से देखे थे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट, ये सारे के सारे ऐसे इंडिविजुअली तो नहीं होते, दे आर इन लम्प. सो उन लम्प्स को बर्न किया जाता है रोटरी किल्न में, भट्टी में जिसे कह सकते हो आप,
और फिर वो फाइनली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं. दे मेक दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स known as Bogues compound, which are also important. Now let's go on to the next topic, that is Bogues compound. So they'll go like this way, that is halite, belite, AB, salite. अब डेलाइट नहीं है, इट इज़ फेलाइट, यानी ABC and F. Halite is nothing but tricalcium silicate C3S or three molecules of calcium oxide and SiO2. 40% average है इसका. Belite is dicalcium silicate. This was tricalcium silicate. This is 2CaO SiO2. This is 32% average. Then is salite, that is tricalcium aluminate. This is 3CaO.Al2O3 and this is 10.5% on average. Then there is phthalate, that is tetracalcium aluminoferrite, C4AF. This is 4CaO.Al2O3.Fe2O3 and this is 9% on an average. Now let's see in short each one of them. That is halite, then there is belite, then there is salite, and then there is phthalate. Let's see each one of them. So this is 40% average, this is 32% average, this is 10.5% average, and this is 9% average. Next thing is halite या फिर tricalcium. This is C3S, this is C2S, this is C3A, and this is C4AF. What it does is it gives early strength. Early strength में 7 दिन की जितनी भी strength आती है और हार्डनेस, वो halite या फिर ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट उसके लिए रीज़न, उसका कारण है. whereas dicalcium silicate gives you later or ultimate strength, whereas tricalcium aluminate gives you flash set or quick set or initial set. This is what tricalcium aluminate is what helps cement to set very quickly. Then comes tetracalcium aluminoferrite. ये भी फ्लैश सेट देता है, फ्लैश सेट या क्विक सेट देता है, बट ये ज़्यादा देर टिकता नहीं है सीमेंट में. हैंस पोरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू है इसकी. इसका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है बिकॉज इट डजंट स्टे फॉर लॉन्ग, ताकि इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च की जाए. Then we go back to halite. The heat of hydration एक पैरामीटर है इन सबको कंपेयर करने का. फॉर ट्राइकैल्शियम सिलिकेट इट इज़ 502 joules per grams. For dicalcium silicate it is the lowest one, सबसे कम है इसमें, 265 joules per gram. For salite it is the highest one, 865 joules per grams, and phthalate is 419 joule per gram, third one. So this becomes heat of hydration. Then comes, again we go back to halite. It is tricalcium silicate which causes, that is halite,
जो ड्राई श्रिंकेज देता है, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस देता है टू फ्रॉस्ट एक्शन. Whereas you go to dicalcium silicate, this is responsible for resistance to chemical attack. और साथ ही साथ सूटेबल है ये मास कंक्रीटिंग के लिए. I have a doubt whether Ballet might be some involved in plastic shrinkage, but I'll have to confirm it. In case that is the case, I'll add it in comment. So this is that. Okay. Yes, it is tricalcium aluminate जो plastic shrinkage देता है while making sure सीमेंट सेट करे, और स्ट्रेंथ भी रिड्यूस करता है. C3A या फिर ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट जो है, इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर इज़ वेरी लो, और इसकी रैपिडिटी को रेगुलेट करता है, रेगुलेटेड बाय जिप्सम 2 to 3%, जो कि हमने पीछे देखा. टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड के डिसएडवांटेजेस, all disadvantages are same as C3A with lesser intensity. डिसएडवांटेजेस जैसे कि सल्फर अटैक को प्रोन रहना, फ्लैश सेट करना, ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन देना, सो ये सब C4AF में ऑलरेडी हैं बट विद लेसर इंटेंसिटी. देन जो C3S है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टोबरमाइट जेल, इसलिए भी बिकॉज ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. सो C3S in presence of water gives CSH gel, जिसे टोबरमाइट जेल कहते हैं या थम्बोहाइड्रेट जेल कहते हैं. अलॉन्ग विद दैट कि C3S पानी के साथ देता है, C3S plus H2O gives 3 molecules of 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे पोर्टलैंडाइट भी कहा जाता है, पोर्टलैंडाइट. और वहीं इफ़ यू गो टू C2S भी पानी के साथ CSH जेल या फिर थम्बोहाइड्रेट जेल देता है, जो कि सीमेंट जेल है. दिस इज़ व्हाट फॉर्म्स सीमेंट. सो और अनलाइक C3S जो कि 3 मॉलिक्यूल्स देता है पोर्टलैंडाइट के, C2S ओनली गिव्स 1 मॉलिक्यूल. सो ये चीज़ है. नाउ कम्स सम रेट कंपैरिजन, जैसे कि पहला आता है रेट ऑफ हाइड्रेशन. सो इसमें C4AF यानी कि फेलाइट सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, फॉलोड बाय tricalcium aluminate, followed by C3S, and then followed by C2S. So within 1 hour C4AF will complete its reaction, C3L will take 24 hours, C3S will heavily take part in for first 7 days, and C2S will continue for 1 year or more. So this was for rate of hydration. Second thing was binding property में ऑर्डर क्या है. बाइंडिंग प्रॉपर्टी विच इज़ समथिंग लाइक स्ट्रेंथ. सो C3S इसमें सबसे आगे है, फॉलोड बाय C2S एंड देन फॉलोड बाय C3A एंड देन C4AF. तो एनी हाउ पोरेस्ट सीमेंटिक वैल्यू कैरी करता है. सो स्ट्रेंथ में सबसे पहले एलाइट है.
followed by someone who gives later on strength. Then third one is water requirement. So water requirement की बात करी जाए तो C3S की सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय C2S, उसके बाद C3A और C4AF की ऑलमोस्ट इक्वल है. देन अमाउंट में बात की जाए तो इट इज़ एलाइट, बैलाइट, सैलाइट, फैलाइट, तो उसमें नहीं जाएंगे. देन कम्स अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन. Amount of heat of hydration, so it is C3A, which is 865 joules per grams, followed by C3S, which is 500 joules per grams nearly. Then comes C4AF, which is nearly 420 joules per gram. And then there's C2S, which is near about 260 joules per gram. अब यहाँ पे दो ग्राफ आते हैं जनरली विच आर इम्पॉर्टेंट. इनमें अक्सर पूछा जाता है कौन सी चीज़ क्या है. ऑन वाई एक्सिस देर इज़ परसेंटेज ऑफ हाइड्रेशन एंड देन देर इज़ टाइम, और लॉग स्केल पे है ये. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So percentage of hydration में देखा जाए तो सबसे ऊपर comes C4AF, followed by C3A, then followed by C3S. This is something similar to rate of hydration. Then comes C2S. फिर आता है compressive strength का ग्राफ. जहाँ पे वाई एक्सिस पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है एंड एक्स एक्सिस पे टाइम है. दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1. सो यहाँ पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में सबसे ऊपर आता है C3S, फॉलोड बाय C2S. जैसे कि हम देख सकते हैं इवेंचुअली C2S विल कैच ऑन, देन इज C3A एंड then C4AF, which has poor cementing value. Now एक important aspect यहाँ पे आता है कि for complete hydration of cement 23% वाटर यानी कि 23% ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. इतना रिक्वायरमेंट है कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, बट 15% वाटर स्टक्स इन पोर्स. therefore for complete hydration 38% of water by weight यहाँ पे भी लिख देते हैं 38% of water by weight is or should be added. It's like अगर मैं 23 ml रिक्वायर्ड है सीमेंट को और मैं खाली 23 ml डालूं तो ये 23 ml पूरा पहुंच नहीं पाएगा इस पर, क्योंकि कुछ पोर्स में स्टक रह जाएगा. इसलिए टू मेक श्योर कि 100% हाइड्रेशन हो, उस 15% जो जल पोर्स में स्टक रहता है, वी हैव टू गिव 38% वाटर. अब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड पूछा है या एडेड पूछा है, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू गिव फोकस ऑन. Anyhow, it is seen कि water cement ratio should be near about 0.38 or 0.4 for complete hydration. और अगर water cement ratio less than 0.4 हुआ तो strength reduce करती है, और greater than 0.4 हुआ तो तब भी strength reduce करती है. तो 0.4 एक ideal है, बट खैर हम इससे ऊपर भी ले सकते हैं for workability. Then comes test on cement. Let's go on test on cement.
टेस्ट में हमारे पास फील्ड टेस्ट आते हैं और लैब टेस्ट आते हैं। इसमें लैब टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि फ़िज़िकल टेस्ट आते हैं और केमिकल टेस्ट आते हैं। फील्ड टेस्ट में in field test we go for colors. Color should be uniform, gray/grayish और स्मूथ होना चाहिए। यानी कि अगर स्मूथ नहीं फील हुआ हमें, somehow kind of it is linked with texture, स्मूथ नहीं हुआ, रफ हुआ, तो that means adulteration हुई है, सैंड का अमाउंट ज़्यादा डाला हुआ है। अगेन अगर हाथ डाला जाए सीमेंट के बैग में तो इट शुड फील कूल, और एयर लम्प्स नहीं होने चाहिए, नो एयर लम्प्स। अगर एयर लम्प्स हुए तो डैट विल इंडिकेट प्री हाइड्रेशन, जो कि अच्छी बात नहीं है। प्री हाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ सीमेंट। फिर इसका फ्लो टेस्ट आता है कि अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज़ थ्रोन इन बकेट ऑफ वाटर तो इट शुड फ्लोट फॉर सम टाइम, डायरेक्टली सिंक नहीं होना चाहिए। इट शुड फ्लोट फॉर लेट्स से 10 मिनट्स और उसके बाद इट शुड सिंक रादर देन डायरेक्टली सिंकिंग। ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ओपीसी की 3.15 होती है। देन कम्स कि एक थिन पेस्ट ऑफ सीमेंट शुड फील स्टिकी, वो इंडिकेशन देता है उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी के। इट शुड नॉट बी लाइक पानी पानी ओनली, इट शुड बी स्टिकी। एंड देन थिक पेस्ट अगर होगा, थिक पेस्ट होगा सीमेंट का, तो इट शुड नॉट शो साइन ऑफ क्रैक्स। अगर उसने शो किया आफ्टर 24 आवर्स इमर्जन इन वाटर, तो डैट वुड मीन फ्री लाइम से अनसाउंडनेस आ रही है, इधर यू हैव केप्ट इट फ्री लाइम इन एक्सेस। फिर आता है लैब टेस्ट, फिजिकल वन। इसमें हमारा आता है फाइननेस टेस्ट आता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट आता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट आता है। फिर आता है सेटिंग टाइम टेस्ट, फिर आता है साउंडनेस टेस्ट, फिर आता है स्ट्रेंथ टेस्ट, फिर आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, फिर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब अगर हम देखें तो इनमें से, इन टेस्ट्स में से सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट या स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, ऑल ऑफ दीज डिपेंड अपॉन द कंसिस्टेंसी। ये सारे टेस्ट कंसिस्टेंसी वैल्यू पे डिपेंडेंट हैं, हेंस फाइननेस या कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स फर्स्ट गो टू फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट में हम क्या रहे हैं? सीमेंट की फाइननेस चेक कर रहे हैं, कितना फाइन है वो। और फाइननेस इज नथिंग बट मेजर ऑफ द मीन साइज ऑफ ग्रेन, ऑफ ग्रेन्स इन इट। तो 3 मेथड्स हैं फाइननेस टेस्ट के। पहला आता है सीव मेथड, या जिसको 90 माइक्रोन या 9 नंबर सीव जिसमें हम यूज़ करते हैं। देन कम्स एयर परमिएबिलिटी मेथड, या जिसको नर्स एंड ब्लेन्स मेथड भी कहा जाता है। सेडिमेंटेशन मेथड, यानी कि टर्बिडी मीटर मेथड।
या फिर Wagner's method. So there are three methods, that is sieve method, air permeability method, sedimentation method for fineness. यहाँ पे एक चीज़ आती है, that is specific surface area, which is nothing but surface area divided by weight or surface area divided by volume, depending upon whether we are dealing with liquid or solid. If it is solid, then weight. If it is volume, then it is, if it is liquid, then volume will come. Now let's see air permeability method or air permeability test, which is Nurse and Blaine's test, developed by Leah and Nurse. So if air passes through cement and there is head loss का आने का मतलब है कि फाइननेस है, जितनी फाइननेस बढ़ेगी उतना हेड लॉस ज़्यादा होगा, और जितनी फाइननेस ज़्यादा है यानी कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा है तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू एयर भी ज़्यादा होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हेड लॉस भी ज़्यादा होगा. अब फाइननेस ऑफ OPC हम देखें तो इट इज़ 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम्स और 225 मीटर स्क्वायर पर kg. ये एक स्टैंडर्ड फैक्ट है. Then comes your Wagner's turbidimeter test given by L.A. Wagner. इसमें एक टर्बिडीमीटर यूज़ किया जाता है टू मेजर surface area of 1 gram of cement. Also यहाँ पे सीव मेथड बोलना भूल गया था. 90 माइक्रोन की हम सीव लेते हैं, 90 माइक्रोन सीव, सीव नंबर 9. एंड what should happen is कि 90% of the particles, 90% of the cement particles should pass through this, and not more than 10% particles should retain on this sieve. अगर 10% से ज़्यादा रिटेन होने लगे तो डैट वुड मीन कि जितनी आपको टारगेट आपकी फाइनेंस थी वो नहीं मिल पाई. सो 90% ऑफ द पार्टिकल्स, लाइक 100 ग्राम अगर आपने सीमेंट लिया है तो 90 ग्राम निकल जाना चाहिए. Then comes this thing. So what does fineness do? If fineness increases, rate of hydration increases, rate of gain in strength, सो फाइनेंस इंक्रीज होने से ये एस्पेक्ट्स इंक्रीज़ करते हैं. रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है यानी कि बोग कंपाउंड जल्दी बनते हैं. रेट ऑफ गेन इन स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है. रेट ऑफ सेटिंग इंक्रीज़ करती है यानी कि सेटिंग जल्दी होने लग जाती है, जो कि एक नुकसान है. इट इज़ जल्दी सीमेंट का जल्दी सेट होना, इट इज़ अ लॉस वी कैन से. रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, तो एक लॉस है. देन फाइनेंस बढ़ने से रेट ऑफ एल्कली
aggregate reaction, these also, you know, they get increased, so this is also a loss. Then comes the second one, that is consistency test. Consistency test, जो कि consistency is nothing but a degree of fluidity, a degree of flow. So it gives us a degree of fluidity of cement. So consistency में हम यूज़ करते हैं विकेट्स apparatus, जिसमें हम 300 ग्राम्स, इस apparatus में हम 300 + 0.3% ऑफ सीमेंट, इतना सीमेंट लेते हैं और पेस्ट बनाते हैं at the rate 24% water by weight of सीमेंट. यानी अगर 100 ग्राम सीमेंट है तो 24 ग्राम इसमें पानी होगा. एंड वी मिक्स फॉर 3 to 5 minutes. ये जो पेस्ट है ये विकेट एपरेटस में डाली जाती है और इसी पेस्ट में विकेट एपरेटस का एक फ़ोटो देखते हैं. लेट्स सी. Yeah, as you can see, ये है विकेट एपरेटस. इस मोल्ड में हम सीमेंट का पेस्ट डालते हैं और इसमें नीडल की बजाय कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो हम प्लंजर यूज़ करते हैं. प्लंजर इज़ यूज फॉर कंसिस्टेंसी एंड नॉट नीडल. इस प्लंजर के डायमेंशंस कुछ ऐसे होते हैं. इसकी हाइट या लेंथ 50 mm रहती है और इसका डाया जो है 10 mm रहता है. लैब की कंडीशंस के बारे में बात की जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लैब में 65% होती है और मॉइस्ट रूम में 90% रहती है. और जो टेम्परेचर रहता है दैट इज़ 27 ± 2 डिग्रीज़. 27 ± 2 डिग्रीज़. अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम किसे बोलते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम वाटर, यानी कि मिनिमम कितना पानी हम डालें सीमेंट में कि प्लंजर इज एबल टू पेनिट्रेट 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप और 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम. इसका रीज़न ये है कि विकेट मोल्ड का जो एपरेटस है, यहाँ पे खाली एक डायग्राम में बना रहा हूँ मैं, वो 40 mm का है. अगर टॉप से वो 33 to 33 mm या 35 mm कर रहा है पेनिट्रेट, दैट इज़ बॉटम से वो 7 mm कर रहा है रिमेनिंग स्पेस. सो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि बाकी जितने भी टेस्ट्स हैं उनके लिए कितनी वाटर रिक्वायरमेंट होगी. ये डिपेंड करता है कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितनी है सीमेंट की. और नॉर्मल कंसिस्टेंसी खुद इस बात पे डिपेंड करती है कि सीमेंट की फाइननेस और कंपोजिशन क्या है. हेंस समहाउ फाइननेस या फिर कंसिस्टेंसी या फाइनेस डिटरमाइन करती है कंसिस्टेंसी को, और कंसिस्टेंसी डिटरमाइन करता है बाकी जो टेस्ट हैं सीमेंट के, जैसे कि सेटिंग है, साउंडनेस है, स्ट्रेंथ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑल. सो फॉर टुडे आई गेस I'll end my lecture here. From today or in second part of this video we'll see something else about our consistency test or setting time test, soundness test, strength test, यानी कि remaining test we'll see in second part. Thank you.